سحری کھانے کا دل چاہتا ہے نا, اس لیے چاہتا ہے کہ نہیں کھائی تو سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہے گا. اتنے موٹے موٹے الارم لگا کے سوتے ہیں بھائی ایسا نہ ہو, کیونکہ گرمیوں کے روزے چل رہے ہیں. اور بعض دفعہ بعض لوگ تراویح کے بعد کھانا نہیں کھاتے, افطاری میں ہی کھا لیتے ہیں, پھر وہ سحری میں جا کے کھاتے ہیں. اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی گئے. اور یاد رکھو سحری میں اگر آنکھ نہ کھلے تو روزہ پھر بھی فرض ہے, آپ روزہ چھوڑ نہیں سکتے کہ یار اب تو ایکچولی بڑی پرابلم ہو گئی ہے, رکھنا پڑے گا. اور کوئی بھی نہیں مرتا, بھوک کا کوئی نقصان نہیں ہے. جو ڈاکٹر حکیم کہے نا بھوکا رہنے سے نقصان ہوتا ہے, اس کو میرے پاس لاؤ. بھوکا رہنے کا صحت کو کوئی نقصان نہیں ہے, فائدے ہی فائدے ہیں. آپ کا جگر بہت اچھا ہو جاتا ہے, کام کرنے کے لائق ہو جاتا ہے. بھوکا رہنے کا ایک نقصان ہے, وقتی کمزوری. وقتی سمجھتے ہیں؟ ادھر آؤ, وہ دیکھو رمضان کا چاند نظر آ گیا. رمضان کا روزے آئے, روزہ رکھنے کی طاقت دے, ہمت ہم کو یا اللہ سجدے میں. دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان کا چاند اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کے نزول کا پہلا اعلان ہوتا ہے. اور جو شخص رمضان کا چاند دیکھ کر اللہ پاک سے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کرے, اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو پاس کھڑے ایک شخص نے کہا کہ اے علی, اگر کوئی شخص چاند نہ دیکھ سکے تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی اس کو خبر ملے کہ رمضان کا چاند آ چکا. اپنے باپ کے سامنے اکڑ کے مت چلا کرو, کیونکہ اسی نے تم کو چلنا سکھایا ہے. انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں, نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا. شیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گیدڑ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پیار تو سچا ہی ہونا چاہیے, جھوٹے تو برتن بھی ہوتے ہیں. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان. نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں, جلدی روٹ جاتے ہیں, پھر جلدی مان بھی جاتے ہیں. سنا ہے خدا کو ایسے لوگ بہت پسند آتے ہیں. محمد نبینا بنور هدینا, من مکہ حبیبی نور سطال. السلام علیکم ٹک ٹاک کی عوام, کیسی ہے پبلک بھائی؟ خدا خان مجھے کل انسٹاگرام پہ ایک سوال پوچھتی ہیں اور میں اس کا جواب نہیں دے پاتا ہوں. مجھے ایک دن کا ٹائم دیتی ہیں وہ, تو چلیے آئیے میں آپ لوگوں سے وہ سوال پوچھتا ہوں اور مجھے جواب دیجیے کمنٹ باکس میں. سوال ہے, پیر دیکھے پیغمبر دیکھے, ہم دیکھے آپ دیکھے, اللہ پاک نہ دیکھے, ایسی کیا چیز ہے جو اللہ پاک نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا ہے ایسا؟ جلدی سے کمنٹ کر کے مجھے جواب دیجیے. نماز کے ترنت بعد لوگ موبائل نکال کے ایسے چیک کرتے ہیں جیسے قبولیت کا میسج اسی پہ آیا ہو. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان. السلام علیکم دوستو. بشر نام کے ایک بہت بڑے شرابی تھے, 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے. ایک دن وہ راستے سے جا رہے تھے, راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. انہوں نے ادب سے اٹھایا, سینے سے لگایا, چوما, ماتھے سے لگا, اچھی جگہ پر رکھ دیا اور شراب پینے چلے گئے. خدا کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وقت کے ولی کو خواب میں خدا نے بشارت دی اور کہا کہ جاؤ بشر سے ملو, میرا سلام کہنا اور کہنا اس سے کہ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. وقت کا ولی
शराबी को ढूंढता हुआ शराब खाने पर पहुंचा और जाकर उनको खुदा का पैगाम पहुंचाया और कहा कि खुदा को तुम्हारी वो अदा इतनी पसंद आई कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए और तुमको सलाम भी कहा है। हालांकि बिशर उस वक्त फुल नशे में थे, लेकिन खुदा के सलाम का नशा ऐसा था कि शराब का नशा उतर गया, खुशी से रोने लगे और कहा कि खुदा ने मेरे छोटे से अमल की वजह से मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, अब जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और वक्त के वली बने। मेरे भाई, किसी को कभी कम नहीं समझना, पता नहीं खुदा को कब किसकी कौन सी अदा पसंद आ। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कोरोना की वजह से 51% मालदारों की दौलत कम हुई। कोरोना ने दुनिया से 226 अरबपति कम कर दिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 226 नहीं 2600 अरबपति भी कम हो जाए तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया नहीं रुकेगी। एक मिनट के लिए सोचिए कि इस दुनिया से सारे अमीर, दौलतमंद, सेठ, साहूकार, जागीरदार अगर खत्म भी हो जाए तो दुनिया नहीं रुकेगी और कभी नहीं रुकेगी। लेकिन अगर मजदूर, किसान, प्लम्बर, धोबी, बावर्ची, मिस्त्री, ड्राइवर, नौकर, चाकर अगर खत्म हो जाए तो दुनिया 10 से 15 दिन में सीज हो जाएगी। सिर्फ किसान भी अगर जिंदा रहे तो जिंदगी चलती रहेगी। मेरे भाइयों, दुनिया इन गरीब मजदूरों और किसानों की वजह से चल रही है। हमने इनको हकीर और कमतर समझा, इसकी सजा मिल रही है। मेहनत करने वाले को कम और हराम खाने वाले को ज्यादा मिल रहा है। इन गरीब मजदूर और किसानों का हक और उनको इज्जत देना सीखे, ये बीमारी कभी नहीं आएगी। আল্লাহ তখন ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করে, এই ঘটনা কি? খায় না যে? খায় না কেন? আল্লাহ রোজা রাখছে, এগুলো কি? রো আফজা, পেঁয়াজ, আলুর চপ, বেগুনি, মুরগির রান খায় না। খায় না কেন? ওরা যে ক্ষুধার্ত, আল্লাহ আপনার ভয়ে। তাই কি চায়? আল্লাহ আপনার কাছে ক্ষমা চায়, ক্ষমা চায়। আল্লাহ রহমতের দরিয়ায় জোশ খেলে যায়। আল্লাহ তখন বলে, আমারে দেখছে নাকি ওরা? ফেরেশতারা বলে, না দেখে নাই। আমার জান্নাত জাহান্নাম দেখেছে? না দেখে নাই। আমারে না দেখে, জান্নাত জাহান্নাম না দেখে আমার এত ভয় করে। যাও, আজকের এই রোজার বিনিময়ে এখন বান্দা যা চাইবে সব কবুল করে নেব। पहले क्या होता मालूम? कोई भी मुसलमान जब किसी दूसरे इलाके में जाता ना, पहला सवाल ये पूछता था, पहला सवाल कि हाँ मस्जिद कहाँ है, और दूसरा सवाल उसका होता था, मस्जिद में माशाल्लाह नमाजें होती है ना, अजान होती है ना, मस्जिद में काम होता है ना। तीसरा सवाल उसका ये होता था कि भाई तुम्हारे पास कुरान है ना घर में, तुम्हारे बच्चे कुरान तो पढ़ते होंगे ना। वो जमाना था कि एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता तो अल्लाह के घर की फिक्र को लेकर जाता, अल्लाह के कुरान पाक की फिक्र को लेकर जाता। आज हमारे ये जवान, ये जितने जवान है, जहां दूसरी जगह पर जाएंगे पहला सवाल चार्जर है, चार्जर सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? दूसरा सवाल वाईफाई, पासवर्ड। खुश रहने का सबसे अच्छा उसूल ये है कि जहां आपको लगे कि वहां आपकी इज्जत नहीं हो रही है तो खामोशी से अपने आप को वहां से अलग कर लो, बस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नेक आदमी था, उसके दिल में यह ख्याल आया कि अल्लाह तूने ये अमीर गरीब क्यों बनाए, काश सबको अमीर बना देता। आज गरीब कितना परेशान है और अमीर कितना ऐश में है, ये तो नाइंसाफी हुई ना। हालांकि अल्लाह सबको जवाब नहीं देता, लेकिन किसी किसी को दे देता है। वो रात को सोए ख्वाब देखा कि सब अमीर हो गए, बहुत खुश हो गए, लेकिन घर का राशन खत्म हुआ तो बनिए के पास गए तो दुकान बंद थी। बनिए ने कहा, अब मैंने दुकान बंद कर दिया, खुदा ने मुझे बहुत दौलत दी, मैं क्यों मेहनत करूं। फिर उनकी घर की दीवार गिरी तो मिस्त्री को ढूंढने गए। मिस्त्री ने कहा, मैंने मिस्त्री काम बंद कर दिया, अब मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, मुझे खुदा ने बहुत दौलत दे दी। फिर उनका नौकर घर पे आया, कहा कि अब मैं काम पर नहीं आने वाला, मुझे खुदा ने बहुत दौलत दे दी है, अब घर की सफाई आप खुद करें, कपड़े खुद धोए, खाना खुद बनाए, अब मैं नहीं आने वाला। वो नींद में से उठे और सजदे में गिर गए, कहने लगे, खुदा तेरी कुदरत, तेरी हिकमत तू ही जानता है, हम जैसे हकीरों को और कम अक्लों को तेरी कुदरत में बोलने का, दखल देने का कोई हक नहीं। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई और करीब है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत आएगी, वो उम्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होंठों, प्यासी ज़ुबान, सूखी हुई आँखें और भूखे पेट जब इफ्तार करेंगे, तब मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। और मूसा, मेरे और तेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन जब वो इफ्तार करेंगे तो हमारे दरमियान
ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ جو بھی دعا اس وقت مانگیں گے میں ان کی وہ دعا قبول کروں گا۔ যুবকদের আল্লাহ ফরজ নামাজ পড়লে যে সওয়াব দেবে, আমার মতো পাকা দাড়ি বুড়ো তাহাজ্জুদ ফরজ নফল তাহাজ্জুদ পড়ে যে সওয়াব পাবে, একটা যুবক শুধু ফরজ নামাজ পড়ে তার চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে। अरे मास्टर जी, हम तो सारे बहुत ही परेशान हैं। बेटा क्यों हो परेशान, क्या बात हो गई? मास्टर जी, रमजान आने वाले हैं, देश पूरा लॉकडाउन पड़ा है, खाने को कुछ मिल नहीं रहा, कैसे होगा? हमारी सहरी कैसे करेंगे और इफ्तियार कैसे करेंगे, बताना। अरे तो बेटा इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जिसका काम है वही जाने। जिसका काम है वही जाने क्या मतलब? बेटा जिसने रमजान बनाए वो रखवाना भी जानता है, हालात चाहे जो भी हो वो सबको खिलाना भी जानता है। तो मास्टर जी बिल्कुल 1 लाख रुपए की बात कही है, लेकिन अब करना क्या है हमें? तुम तो बेटा बस तैयारियां करो, झोली फैलाओ, उसकी रहमत बरसने वाली है। नेकियों का मौसम है ये, क्यों ना हिस्सा डालूं, जन्नत का सौदा या रब मेरे लिए भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक आदमी बड़ा साइंटिस्ट बना घूमता था, हर चीज में नुक्स निकालना, ऐब निकालना, कीड़े निकालना, ये उसकी आदत थी। एक दिन वो खेत में गया तरबूज के, देखा इतना बड़ा तरबूज और छोटी सी बेल पे लगा हुआ, तो आसमान की तरफ देख के बोलने लगा, खुदा क्या तेरा सिस्टम है, इतनी बेइज्जती इतने बड़े फल की छोटे से दरख्त पे लगा दी। फिर वो कैरी के दरख्त के नीचे गया और कहने लगा, खुदा क्या तेरा सिस्टम है, इतनी इतनी कैरियां और उसके लिए इतना बड़ा पेड़, तरबूज को यहाँ होना चाहिए था और कैरी को वहां होना चाहिए था। और थोड़ी देर के बाद उसको वहां पर आंख लग गई, वो सो गया, तो फुल नींद के अंदर एक कैरी आके उसके सर पे गिरी, हड़बड़ा के उड़ गया, उसको लगा मेरा सर फट गया, लेकिन देखा तो एक छोटी सी कैरी थी। तो थोड़ी देर सोचा और सजदे में गिर गया और कहने लगा, खुदा तू जो करता है वो सही करता है, अगर इसकी जगह यहाँ पर तरबूज लगा होता तो मेरा तो सर फट गया होता। मेरे भाइयों, जो खुदा करते हैं वो सही करते हैं और हमारे लिए बेहतर करते हैं। खुदा का